Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Yesterday we have started chapter number 19 and we have seen the nomenclature of aldehydes and ketone, both IUPAC and trivial naming. Fine. So today we are going to start with the physical properties of both of the aldehydes and ketones. So let's have a look on the physical properties first and then we will move toward chemical properties. Okay. So when it comes to physical properties of aldehydes and ketones, so basically they both are having hydrogen bonding in them. And why they have hydrogen bonding in them? Because if we look at the structure of aldehydes and ketones, so there is a hydroxyl group present. Let me write it for you. So okay, so they have this is the structure of aldehyde, and same goes with the on the left side we can have R group or H group. So it is having this part is actually having a hydrogen and oxygen attached to that part, and this oxygen is having lone pair, and we all are familiar with that part, that this oxygen further on try to make a bond with a few of the more जो भी elements attached होते हैं उनसे. So actually this is responsible for the hydrogen bonding. And when it comes to hydrogen bonding, when we are talking about aldehydes and ketones, so basically they are water soluble because they have a hydrogen bonding in them. So whether we are talking about ketones or whether we are talking about aldehydes, so they are containing a hydrogen bonding, and because of this property their polarity is a bit different than the different organic compounds. Okay, so let's we have a look on the physical properties of both of them. The polar nature of CO due to the electronegativity difference of the atoms means dipole-dipole interaction will occur. And why dipole-dipole interaction will occur? Because obviously there's a difference between electronegativity difference between carbon positive and oxygen negative. So definitely they're going to be positive and negative part there. Then though CO cannot hydrogen bonded to each other, the CO can accept hydrogen bond. What does it mean? That this CO, this oxygen, it doesn't have hydrogen bonding like यहाँ पर नहीं है, but this oxygen can accept a pair of hydrogen to it can attract hydrogen toward itself, and they have higher melting and boiling point due to this additional bonding, and compared to analogous alkanes, and a lower boiling point than analogous alcohols, are more soluble than alkanes but less soluble than alcohols in aqueous media. What does it mean? That they are less soluble than alcohols but more soluble than alkanes, क्योंकि alkanes के अंदर जो है वो ये वाला केस नहीं होता. Okay, when it comes to structure of them, so the carbonyl group consists of an O oxygen atom, and we all know they have oxygen in them, atom bonded to a carbon atom via double bond via an sp2 hybridization model. And this is what I am talking about, that this CO, actually whenever we have a double bond, normally 80 to 90% or maybe you can say up to 95%, it is showing sp2 hybridization. फाइन. सो यहाँ पर जो है फ्यू केसेस होते हैं SO2 और SO3 के अंदर, जहाँ हमारे पास बेंडिंग और स्ट्रक्चर्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन होता है स्ट्रक्चर उनका ट्राइगोनल ही है. बट हेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट CO2 और CO. सो वी विल से कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दे हैव sp2 हाइब्रिडाइज मॉडल. एंड सिंपल इतनी सी बातें डिस्कस करनी है. देयर हाइब्रिडाइजेशन मॉडल इज़ नॉट आस्क्ड इन डिटेल. प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की बात करेंगे. सो वी हैव सीन फ्यू ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दैम. We have seen that in the ozonolysis of alkenes, hydration of alkynes, oxidation of alcohols, and Friedel-Crafts acylation of aromatic compound. And this is what we have studied in benzene properties. And alcohols के अंदर हमने oxidation of alcohol देखा था, तो that is the preparation of aldehyde, and I have explained that part there. Okay, so let's we have a look on the preparation. So we have 4 methods of preparation of aldehydes and ketone. First one is ozonolysis of alkene. This is the cutting of your book जो हमने यहाँ पे paste की हुई है. Hydration of alkynes, oxidation of alcohol, and Friedel-Crafts acylation of aromatic benzene ring. Okay, so let's we have a look on that ozonolysis. Simple ozonolysis का क्या मतलब होता है? It is going to react, this alkene double bonded compound is going to react with ozone, and when it will react with ozone, so it will form 2 moles of different carbonyl के बनाएंगे, and it depends कि हम कौन सा वाला अल्कीन यूज़ कर रहे हैं. सो वो अल्कीन जो है वो हाइड्रोजन चीज़ के ऊपर डिपेंड करेंगे. नेक्स्ट पार्ट वी हैव अ हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन. हाइड्रेशन मीन्स के सिंपल दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद द वाटर, एंड व्हेन इट इज़ गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर, सो इट विल फॉर्म इथेनॉल.
दिस वन, ठीक है। दिस इज़ इथेनॉल। एक्चुअली वही वाली बात है कि डिपेंड करता है कि आप क्या लगा रहे हो, बट ओवरऑल एक रिएक्शन के अंदर आपके पास क्या होगा कि एल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट यू हैव इट इज़ ऑक्सीडेशन एंड आई रिमेंबर कि मैंने आपको बताया था कि व्हेन अल्कोहल अंडरगोज ऑक्सीडेशन दे कन्वर्ट फर्स्टली इनटू एल्डिहाइड्स एंड देन दे कन्वर्ट इनटू carboxylic acids. So this is what carboxylic acid, it is written here, it is going to be repeated for carboxylic acid also, but primary alcohol जो हैं वो ऑक्सीडेशन जब करती हैं प्राइमरी अल्कोहल, सो दे गिव दैट पार्ट, ठीक है। आपका कौन, एल्डिहाइड्स। एंड लास्ट इज़ द एसीटोफिनोन, एसाइलेशन कहते हैं बेंजीन के एसाइलेशन। पूरा का पूरा मैकेनिज़्म जो है वो हमने पीछे पढ़ा हुआ है, बट हेयर जस्ट द रिएक्शन इज़ रिटन। तो हम इनको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। व्हाट एक्चुअली हैपन्स हेयर, mechanism for reaction of an alkene with ozone. Step 1 is required. The electron act as a nucleophile. Electron of this oxygen attacking the ozone at the electrophile terminal oxygen, a second CO is formed by the nucleophilic oxygen attacking the other end of the carbon-carbon double bond. What they are saying, मैं ये वाली एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि देखें यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्री यहाँ पर भी मौजूद हैं और यहाँ पर भी मौजूद हैं, तो बेसिकली ब्रेकिंग इस बॉन्ड की भी होनी है। इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो ये सिंगल में कन्वर्ट होगा। प्लस ये जो आपके पास ये वाले ओजोन के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, वो क्या करेंगे कि थोड़ा सा ग्रीडी नेचर कह लें उनकी, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लेके अपनी तरफ हो जाएंगे, ठीक है। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लेके अपनी तरफ होंगे तो यहाँ वो यही चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि द इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल attacking the ozone at the electrophilic terminal oxygen. A second CO is formed by the nucleophile oxygen attacking the other end of the carbon double bond. Second part में क्या कह रहे हैं, the cyclic species called the molozonide rearranged to the ozonide. ये नाम ले रहे हैं जो ये चीज़ आपके पास बन रही है उसकी। On work up usually zinc acetic acid, the इसको मेलोजोनाइड भी कह सकते हैं और मैं इसको कंबाइंड फॉर्म में नाम ले रही हूँ तो मर्ज़ी है। सो चलें, मेलोजोनाइड जो है डिकम्पोज टू गिव टू कार्बोनाइल कंपाउंड, और ये आपके पास जब ये डिकम्पोज होगा तो ये कुछ इस तरह से डिकम्पोज होगा। ये जो दो कार्बोनाइल कंपाउंड्स आपको मिल रहे हैं, ये दो कार्बोनाइल कंपाउंड किस चीज़ के हैं, वही आपके पास एल्डिहाइड्स हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ ओजोनोलिसिस अकर्स इन डबल बॉन्ड कंपाउंड्स, सही है। अच्छा, यहाँ मैं ये स्ट्रक्चर बता दूँ, मे बी आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा हो, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ दो ऑक्सीजन आपने लिखने हैं और इसके साथ ये लाइन स्ट्रक्चर लगा देना है, ठीक है। बीच में आपके पास कार्बन है और यहाँ इसका स्ट्रक्चर और ये आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर, मतलब एक कार्बन आपके 4 बॉन्ड बना रहा है और सारे के सारे कार्बन आपके पास थे कितने, कार्बन एक्चुअली आपके पास 2 थे। तो ये 2 कार्बन कौन से हैं, एक कार्बन आपके पास ये है, एक कार्बन आपके पास ये है, और इन्होंने अपने साथ अटैच किसको किया हुआ है, ऑक्सीजन को अटैच किया हुआ है। ये वाला बॉन्ड आपने तोड़ देना है। जब ये वाला बॉन्ड आप तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन इधर अरेंज हो जाएंगे और एक ऑक्सीजन इधर अरेंज हो जाएगा और सारी तरफ से बॉन्ड्स जो हैं वो बना के आप दिखाएंगे, ठीक है। सो सॉरी, ये आपके पास हो रहा है। इसके बाद आ रही है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल एज यू कैन सी कि वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है, वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है तो बीच में आपके पास विनाइल अल्कोहल बनता है, डबल बॉन्ड वाला अल्कोहल, और बाद में क्या होता है कि थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होती है। रीअरेंजमेंट के बाद एसिटाल्डिहाइड आपके पास फॉर्म हो जाता है। प्लस ऑक्सी mercuration of alkynes produces the same result as an hydration. Oxymercuration means कि you are going to allow mercury containing compound, वो alkynes के साथ react करेंगे और इनोल बनाएंगे। इनोल ये आपके पास ये structure जो है ये कहलाता है इनोल, और दिस इनोल इज़ गोइंग टू रीअरेंज इट सेल्फ एंड इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू इथेन, ठीक है, सॉरी कीटोन। एंड लास्ट प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अराइल कीटोन, हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन, सिंपल, इट इज़ गोइंग टू रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल हु दैट बेंजीन पार्ट, जिसका आपको एसिटाइलेटेड बेंजीन कहते हैं, एसिटाइलिन है बेंजीन के साथ लगा हुआ, तो ये इसकी मर्क्यूरिक सल्फेट मर्क्यूरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो एसीटोफिनोन आपके पास बन जाएगा। प्लस इसको नेक्स्ट पार्ट में एक और आगे दिखा देती हूँ मैं, पहले वही दिखा देती हूँ।
एसीटोफिनोन बनाने का तरीका, और फिर मैं आपको पीछे ला के दिखा देती हूँ। दिस इज़ 2 तरीके से एसीटोफिनोन बना रहे हैं, एक तो मर्क्यूरिक सल्फेट से बनवा रहे हैं और दूसरा ये से एसिटाइलेटिंग एजेंट है। दिस इज़ योर एसिटाइल क्लोराइड। फाइन, एसिटाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद एरोमेटिक कंपाउंड, वी आर यूजिंग बेंजीन एंड कंप्लीट। अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपसे पूछा जाता है तो ठीक है, सिंपल, वरना क्या करेंगे कि दिस Cl इज़ गोइंग टू, जो यहाँ से H निकलेगा उसके साथ मिलता है HCl बना लेता है, और बाकी आपने ये सारा का सारा जो है ये बेंजीन रिंग के साथ लगा के दिखा देना है। दिस इज़ एसीटोफिनोन, फ्रीडल क्राफ्ट आइसोलेशन है। ओके, नंबर 3 मेथड, oxidation of primary and secondary alcohol. How it happens actually, oxidation means कि it is going to react in the presence of KMnO4, potassium dichromate, potassium K2Cr2O7, so और sulfuric acid, ठीक है। तो ये क्या होगा कि it will convert into butanol primary alcohol, and when it comes to secondary alcohol, तो secondary alcohol oxidize into ketones, simple, सही है। So these are the methods of preparation of ketones. Then it comes a reactivity, and when we are talking about reactivity, तो डबल बॉन्ड ऑफ द कार्बोनाइल हैज़ आ, ये जो डबल बॉन्ड होता है ये वाला ऑक्सीजन का, कहते हैं कि इसका जो है ना हैज़ अ डबल बॉन्ड, एंड ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट अट्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स सेल्फ, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। दिस अट्रैक्शन मेक द कार्बोनाइल ग्रुप अ पोलर ग्रुप, ये पॉजिटिव चार्ज बन जाता है या नेगेटिव क्रिएट हो जाता है, पोलैरिटी आ जाती है। द ऑक्सीजन एटम हैज़ अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन इट एंड द कार्बन एटम हैज़ अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज pulled more strongly than by the oxygen atom than the carbon atom. It makes oxygen atom nucleophile and carbon atom become electrophile. वही कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होती है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। ऑक्सीजन क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो क्या हुआ, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, तो उसको वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये जो पोलैरिटी का डिफरेंस है ना, दिस इज़ एक्चुअली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस पोलैरिटी डिफरेंस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ बोथ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की बात करेंगे अगर, तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एक्चुअली। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को 2 पार्ट में डिवाइड करें। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। बेसिकली कार्बोनाइल, दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। कार्बोनाइल ये चीज़ है, इधर वाली चीज़ों को हम ज़्यादा वो नहीं कर रहे, बस मेन इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। बेस कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेस कैटेलाइज के अंदर वो ऑब्वियसली नाम से ही समझ में आ रहा है कि बेस कैटेलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस विद अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट। द बेस रिएक्ट विद द रिएजेंट एड जनरेट्स द न्यूक्लियोफाइल, द एडिशन इज़ इनिशिएटेड। चलें जी, मैं ये पढ़ के भी बता देती हूँ, लेकिन पहले हम लोग बेहतर होगा कि हम इक्वेशंस देख लें। होगा क्या आपके पास, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल की एडिशन करनी है आपने, सिंपल यही बताना चाह रहे हैं वो यहाँ पर। और होता क्या है आपके पास कि हम लोग एडिशन रिएक्शंस जब होते हैं ना, तो नॉर्मली एडिशन का मतलब क्या है कि बॉन्ड जो है आपके पास क्या होगा, एडिशन रिएक्शंस में ब्रेक होता है और कुछ चीज़ ऐड होती है। तो न्यूक्लियो बेस कैटेलाइज के अंदर आपका कोई बेस आप यूज़ करेंगे, वो जो है वो क्या करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल को अपने साथ न्यूक्लियोफाइल हम बनाएंगे, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसके ऊपर, और वो एक साइड कार्बन की, अभी आप यहाँ देखें तो एक साइड न्यूक्लियोफाइल के कार्बन लग गया है, एक साइड ऑक्सीजन लगा हुआ है, और फिर क्या होगा, खींचातानी स्टार्ट होगी और आखिर में आपके पास ऑक्सीजन कोई एक चीज़ जो है वो चेंज होगी। तो बेस कैटेलाइज के अंदर आपका ऑक्सीजन जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और बाकी चीज़ जो है वो साइड पे निकल जाएगी। हम इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो देख लेते हैं, सिंपल है, वेरी इजी। इसके अंदर है, अगर आप फर्स्ट एग्जांपल देखें तो दिस इज़ द एल्डिहाइड एंड इट इज़ HCN। सिंपल आपने करना क्या है कि इस नेगेटिव के साथ आपने क्या लगा देना है, दिस पॉजिटिव, और इस नेगेटिव को आपने किधर लगा देना है, कार्बन के साथ ऑब्वियसली। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, होपफुली यू कैन सी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एंड रीज़न भी आपको पता है। एंड जो नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव के साथ है वो आप लगा दें, इट इज़ फॉर्मेल्डिहाइड cyanohydrin। नेक्स्ट यू हैव एसिटल्डिहाइड, एंड व्हेन इट कम्स टू एसिटल्डिहाइड, सो द प्रोसीजर इज सेम, दिस वन इज़ पॉजिटिव, दिस वन इज़ नेगेटिव, दिस वन इज़ पॉजिटिव, दिस वन इज़ नेगेटिव, एंड दैट्स इट। आपने इसको इसके साथ और इसको इसके साथ अटैच करके दिखाना है, एंड द डबल बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी ब्रोकन। उसके बाद एसिटल्डिहाइड के बाद लास्ट वन यू हैव कीटोन ग्रुप, एंड व्हेन इट कम्स टू कीटोन ग्रुप, मैं कलर चेंज करना चाह रही थी लेकिन खैर ये ले लेते हैं। सो
अगेन प्लस नेगेटिव। सो ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं दीज आर एक्चुअली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सियानाइड है जो हम लोग देख रहे हैं। एडिशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की बात करेंगे, दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन प्रीवियसली। वहाँ हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे अकॉर्डिंग टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। यहाँ हम एल्डिहाइड एंड कीटोन को ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के अकॉर्डिंगली, वहाँ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को एल्डिहाइड और कीटोन के अकॉर्डिंगली डिस्कस कर रहे थे, यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन को ग्रिग्नॉर्ड के साथ रिएक्शन करके दिखा रहे हैं। और हमने इसके मैकेनिज्म भी देखे हुए हैं, हाउ टू प्रिपेयर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। मैं ये दोबारा नहीं बता रही हूँ, ये मैं रिएक्शंस आपको पहले बता चुकी हूँ। उसको पूरा मैकेनिज्म के साथ हमने ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के अंदर, अल्काइल हैलाइड चैप्टर है, अल्काइल हैलाइड चैप्टर के अंदर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने मैकेनिज्म के साथ ये रिएक्शंस जो हैं ये पढ़े हुए हैं। और आपने इसके आई थिंक इसका मैंने कोई वो भी दिया था, क्वेश्चन भी दिया था, आपने सॉल्व करके मुझे स्टूडेंट्स ने भेजा भी था। ओके, सो दिस इज़ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट रिएक्शंस। एसीटोन के साथ है तो ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसके अंदर हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल बना के दिखाते हैं। नेक्स्ट इज़ एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट। अगेन सोडियम बाइसल्फेट के अंदर आपको करना क्या है, बेसिकली आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपका पॉजिटिव चार्ज कौन सा है और आपका नेगेटिव चार्ज कौन सा है। सिंपल ये चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि H आपका पॉजिटिव है, बाकी सारी चीज़ आपकी नेगेटिव है, SO3Na वो लगाएंगे। उसके बाद आपके पास NaHSO4 के अंदर अगेन H निकालेंगे, SO3Na आपका अलग हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये NaH, सिंपल सारे सोडियम बाइसल्फेट के साथ रिएक्शन है और हर जगह चीज़ सेम है। यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है, रिएक्शंस बहुत इजी हैं ये। तो आपके पास बाइसल्फेट एडिशन प्रोडक्ट, सल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट, बाइसल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट आपके पास बन रही है। और बाइसल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट में अगर आप HCl ऐड करते हैं तो उसको भी अगर आप देखना चाहें तो फर्दर ऑन कि आपके पास हो क्या रहा है कि ये कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम HCl के साथ रिएक्शन करवा दें तो ये एसीटल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। होगा क्या यहाँ पर, यहाँ ये जो है ना आपका हाइड्रोक्सिल, ये अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो है, सॉरी हाइड्रोजन जो है यहाँ पर जाएगी। तो जब ये हाइड्रोजन रिमूव होगा यहाँ से तो यहाँ अगेन डबल बॉन्ड जो है आपके पास फॉर्म होगा। प्लस ये जो आपका SO3Na है ये दोबारा से आपके पास यहाँ पर ये निकलेगा और ये टूट के निकलेगा। किस फॉर्म में, SO2 अलग हो जाएगा, Na आपका इस Cl के साथ, Na आपका इस Cl के साथ होगा, SO3 अब अलग हो जाएगा। तो वो SO3 जो है वो अकेला तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो SO2 होगा और जो एक ऑक्सीजन आपके पास निकलेगा वो वाटर बनाएगा, ठीक है। सो ये आपके पास रिएक्शन है, ये और यहाँ से एक ऑक्सीजन वाटर बनाएंगे, HCl और Na होगा और SO2 आपके पास एक बच जाएगा तो वो लग जाएगा और यहाँ आपके पास डबल बॉन्ड हो जाएगा, एसीटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एडिशन ऑफ, फिर आपके पास कंडेंसेशन रिएक्शन है। कंडेंसेशन रिएक्शंस के अंदर क्या होगा, द रिएक्शंस इन विच टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू। यहाँ कोई ना कोई आपके पास बाय प्रोडक्ट जो है ना वो निकलती है विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर और अमोनिया आर कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो इसके अंदर आपके पास क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडेंसेशंस, एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ारो रिएक्शंस। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको पढ़ेंगे और साथ में हम फ्यू मोर प्रॉपर्टीज़ इसकी जो है वो देखेंगे। सो दैट्स आई थिंक दैट्स इनफ। आप इन्हीं रिएक्शंस की यहाँ तक इजी से रिएक्शंस जहाँ तक हैं वहाँ तक की प्रैक्टिस कर लीजिए, दैट्स इनफ। अल्लाह हाफ़िज़।